Hello, welcome to the official YouTube channel of R&R Institute. Thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਐਜ਼ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਇਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਥਰਡ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾਂਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ PDF। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਓਕੇ ਬਈ, ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟ 2। ਓਕੇ ਬਈ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਲੌਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, 4 ਲੌਜ਼ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਲੌਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਈਨਸਟਾਈਨਸ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ H ਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ ਨਾਟ ਬਾਏ E। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ V0 ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਨਿਊ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਨ ਫੋਲ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ। ਨਿਊ ਨਾਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਇੰਟਰਸੈਪਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਗਾ। ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਫ ਨਿਊ ਇਜ਼ 0, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਨ ਫੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਨ ਫੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋਨ, ਤਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਸ ਫੋਟੋਨ ਦੀ 0 ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਮੈਟਾਲਿਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ V0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਦੇਖੋ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ -H ਨਿਊ ਨਾਟ ਬਾਏ E। ਤਾਂ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਫੋਟੋਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਾਲਿਕ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਫ V0 ਇਜ਼ 0, ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ V0 0 ਆ ਲੈਟਸ ਸੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ H/E ਤਾਂ 0 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ H/E ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ 0, ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ E ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਆ ਨਾ H 0 ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 0। ਇਹ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ 0 ਹੋਊਗਾ, ਵੈਨ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ ਨਾਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਊ ਨਾਟ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ।
ओके सो हुण आपां जिहड़ा ग्राफ प्लॉट करना उहदे विच दो एक्सिस हो गई, ठीक है, एक्स एक्सिस तो ये होगी वाई एक्सिस। जी एक्स एक्सिस आ उन्होंने मैं फ्रीकुएंसी अज्यूम कर लेना, ठीक है, तो जो वाई एक्सिस होगी दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। हुण इनू स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों नहीं कह रहे आप, बिकॉज पोटेंशियल ये पॉजिटिव एक्सिस नूं बिलोंग करूगा, है ना, तो आप कल डिस्कस किया सी भी नैगेटिव पोटेंशियल हुंदा गा, सो इस करके नैगेटिव पोटेंशियल इधर होगा नैगेटिव वाई एक्सिस वाल, तो आप इधरों शुरू करांगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। हुण आप रिसेंटली किया सीगा कि वी नॉट इज़ माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई इफ न्यू इज़ इक्वल टू जीरो। सो तुसीं देखो जे न्यू जीरो आ दैट मीनस वाई एक्सिस ते एक्स एक्सिस दे विचों कित्थे न्यू जीरो होगा, ओरिजिन ते, है ना, तो जे न्यू जीरो आ इस केस दे विच तां वी नॉट की वैल्यू कितनी आ, तो तुसीं देखो ये वैल्यू नैगेटिव आ, तो नैगेटिव वैल्यू किधर नूं बिलोंग करूगी, डाउनवर्ड। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की यह वैल्यू जी आ तुसीं इत्थे अज्यूम कर लो, बिकॉज कोई भी वैल्यू लै सकते हैं किसी भी पैरामीटर ते, सो दैट वैल्यू इज़ माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, ठीक है, तो इनू असी इंटरसैप्ट वैल्यू कहने आ। ओके, तो दूसरी गल हुण आपां उत्थे कंडीशन लाई सी भी वी नॉट जीरो कदों होगा, जदों अपने कोल थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी ते इंसीडेंट फोटोन की फ्रीकुएंसी जी आ वो इक्वल आ जाएगियां, राइट। तो ये इक्वल कदों आउणगियां, कित्थे आउणगियां हुण ते मतलब वी नॉट जीरो कदों होगा, देखो एक्स एक्सिस के उपर वी नॉट की वैल्यू जीरो होगी, राइट, एंड न्यू की वैल्यू उस टाइम किहदे कोल आ जूगी, न्यू नॉट। सो तुसीं अज्यूम कर लो, मैं थोड़ा जूम करके इनू दूर कर रहा दी वैल्यू नू, सो लेट्स से मैं इत्थे अज्यूम कर ला उन्होंने, सो दिस वैल्यू इज़ न्यू इज़ इक्वल टू न्यू नॉट, ठीक है। आ सैकेंड कंडीशन इत्थे आ गई, तो देखो दो पॉइंट्स, दो अपने को कोआर्डीनेट्स आ गए, ठीक है। हुण इन्हां नूं जिहड़ी लाइन मिलाउंदी आ वो इंटरसैप्ट लाइन मन्नी जाऊगी, सो वो लाइन आपां इस तरह डॉटेड अज्यूम करनी आ, ड्रॉ करनी आ, ठीक है। तो इत्थे वैल्यू आ गई अपने कोल न्यू नॉट थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी। तो कंडीशन क्लीयर होगी भी जदों स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा ਤਾਂ जाके कंडीशन होगी कि वह फोटोन जिहड़ा फॉल करे वह उस इलैक्ट्रॉन नूं एमिट कर सके, मतलब फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन पॉसीबल हो सके। जे हुण आपां न्यू की वैल्यू, सो लैट्स से हुण आपां होर ज़्यादा अगे चलते हैं, सो इफ न्यू इज़ ग्रेटर दैन न्यू नॉट, तो तुसीं देखो जे न्यू ग्रेटर दैन न्यू नॉट आ तो ये वैल्यू जी आ वो पॉजिटिवल हो जूगी, मतलब ये वैल्यू जी आ इंटरसैप्ट लाइन ये दस रही है भी वो वैल्यू इधर नूं जाऊगी। सो जदों वो अपर मतलब अप साइड नूं जा रही है वो वैल्यू, तो उस केस दे विच आपां ये कहांगे भी उहदे कोल पोटेंशियल होऊगा, सो दैट मीनस उत्थे इलैक्ट्रॉन एक्सलरेट करूगा। गल समझ आई, क्योंकि आपां कल काइनेटिक एनर्जी की गल कीती सीगी, तो उहदे कोल काइनेटिक एनर्जी होऊगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी अगे किहदे कोल आ गई सीगी, तो असीं गल कीती सी वर्क डन दे, वर्क डन किहदे कोल सीगा, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। सो दैट इज़ हाउ भी वो इलैक्ट्रॉन कंडीशन के अकॉर्डिंग हुण एक्सलरेट करूगा, मूव करूगा, रीजन बिकॉज उहदे कोल काइनेटिक एनर्जी आ जूगी। तो ये ग्राफ इस करके इन्ना इंपॉर्टेंट सी, ठीक है, ताकि आपां कंडीशन भी समझिए नाल ये नहीं कला लॉ फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट का लॉ समझ लिया असीं डेफिनेशन नूं याद करी फिरदे हैं भी हाँ जी फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन तां हुंदा गा, राइट, तो उहदी वेरीफिकेशन भी होनी चाहिए आ। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट आ, एग्जाम के ग्राफ जरूर आता होंदा, तो इस चीज़ नूं तुसीं याद रखना गा। जो नैक्सट ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं ये हैगा गा साडे जिहड़े लॉज ऑफ फोटो इफैक्ट दे आपां थर्ड ते फोर्थ पोस्टुलेट कल कीते सीगे लास्ट वीडियो दे विच। तां उस वीडियो के थ्रू आपां देखिया सीगा भी किवें इंसीडेंट फोटोन की जिहड़ी फ्रीकुएंसी आ हाउ डज इट रिलेट टू द काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो उस दे थ्रू आपां हुण इत्थे ग्राफ डिस्कस करने ने। जे तुसीं नहीं हजे तक देखियो वीडियो तो लास्ट वीडियो मैं इत्थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी उहदा लिंक दूँगा तुहानूं, पहलां वो देखियो, ठीक है, ताकि तुहानूं पता लगे भी लॉज ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट के थर्ड ते फोर्थ पोस्टुलेट की सीगे, उही आपां ग्राफ के थ्रू इत्थे डिस्कस करने आ। तो जिहड़ा ग्राफ अपने कोल इहदे विच अगेन मैं दो एक्सिस के थ्रू इनू डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ए साइड ते ए साइड के उपर तो होगा पोटेंशियल, ओके। ए साइड नूं मैं इत्थे पहले ग्राफ दे विच करंट अज्यूम कर रहा गा,
ਤਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਓਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ that is equal to charge times potential, right? ਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫੋਟੋਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V1 ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V2। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੱਗੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ νਿਊ1, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ νਿਊ2। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਹਨੂੰ A ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ B ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ A ਐਂਡ B ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਲਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆ? ਤਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਸੈਚੂਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੋਨੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ A ਐਂਡ B ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਜੇ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਜਮਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਦੋਂ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ 4th ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ A ਐਂਡ B ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਵੈਨ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਸੇਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਫੋਟੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल ने। जे इंटेंसिटी सेम आ तो सेम वैल्यू ऑफ करंट भी आऊगा। ओके, तो इस करके ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ सीगा अपने कोल करव जिहड़ा बनाया आपां इहदे थ्रू डिस्कस कीतागा। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होणगियां, याद रखना डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, कैन हैव सेम करंट प्रोड्यूस्ड। कदों सेम करंट प्रोड्यूस हो सकता गा? इफ दे हैव सेम इंटेंसिटी। ठीक है, तो ए एंड बी दे कोल की सिमिलरिटी आ? ए एंड बी दे बोथ हैव सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट फोटोन, ਤਾਂ जाके उन्होंने कोल करंट जिहड़ा वो सेम आया। फॉलो करके गल नूं। ते सैचुरेशन जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ भी ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे, सैचुरेटेड करंट की हुंदा गा। सो ये ग्राफ नूं याद कर लो, चंगी तरह ड्रॉ करके देखो अपनी कॉपी के उपर, तां ही पता लगूगा। वीडियो नूं पॉज कर लो, चाहे पॉज करके पहला ड्रॉ करो, देखो इस चीज़ नूं, ठीक है, चंगी तरह, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ।
ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਟਵੀਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਸੇਮ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਲਓ, पोटेंशियल के उपर अपने कोल इधरली साइड ते नैगेटिव पोटेंशियल आ गया। सो मैं इत्थों एक फ्रीकुएंसी अज्यूम कर लूँगा बाद दे विच भी सपोज करो फ्रीकुएंसी हैगी ν1, ठीक है। तो इत्थों अपने कोल इस तरह के ग्राफ तो सानू गिवन ने, अगेन A एंड B दो ग्राफ ने। हुण A एंड B जिहड़े दोनों ग्राफ ने अपने कोल दे हैव सैचुरेशन अगेन, बट तुसीं नोट करो भी इन्हां दे कोल डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट आ। तो एक दे कोल करंट हो गया लेट्स से IA ए दे कोल, ते दूसरे कोल हो गया IB करंट B। हुण पहली गल करंट किहदे कोल ज़्यादा गा, ऑब्वियसली आ B दे कोल, है ना। दूसरी गल फ्रीकुएंसी देखो, दे हैव सेम फ्रीकुएंसी। हुण मैं तुहानूं पुछां भी इन्हां दोनां दे विचों किहदे कोल ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, तो देखो दसो मैनू, तो इंटेंसिटी किहदे कोल ज़्यादा होगी A और B दे कोलों। तो तुसीं इत्थों देख के दस सकदे हो, इधर सोचण दी लोड़ ही नहीं हैगी तुहानूं, राइट। क्यों? बिकॉज जिहदे कोल ज़्यादा करंट आ उहदे कोल ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी जिहड़ी आ इस सिचुएशन दे विच बिकॉज वो डायरैक्टली डिपेंड करदी आ करंट दे उपर। तो जिहदी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उहदे कोल ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, फोटो करंट उहदा ज़्यादा होगा। सो इस करके B दे कोल ज़्यादा इंटेंसिटी आ एज़ कंपेयर टू A। तो A दी इंटेंसिटी नूं मैं I1 लिख दिना, इहदी इंटेंसिटी नूं I2। तो इत्थों क्लीयर हो गया भी I2 जिहड़ा वो ग्रेटर आ I1 नालों। तो इंटेंसिटी जिहड़ी आ वो ज़्यादा होगी, ठीक है, इस सिचुएशन दे विच बिकॉज दे हैव करंट की वैल्यू ज़्यादा आ गई, बट दे हैव सेम फ्रीकुएंसी। देखो तो इस करके जरूरी नहीं ब्लू लाइट जे सपोज करो फोटोन आ ब्लू लाइट का ਜਾਂ रैड कलर का ब्लू अपने को फोटोन आ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन कर रहा गा, तो वो डिफरेंट करंट प्रोड्यूस कर सकता गा। कंडीशन की आ, दे हैव सेम डिफरेंट इंटेंसिटी, दे कैन हैव सेम फ्रीकुएंसी। तो दो बल्ब ने, ठीक है। हुण इस तरह के कंसैप्चुअल होंदे ने, मेरी वीडियो दे विचों देख के ना तुसीं आई फाइंड आउट कर, बहुत क्वेश्चन तुहानूं मिलणगे। मैं नाल क्योंकि इन्ना तो टाइम नहीं हुंदा भी मैं उस वीडियो दे विच कॉम्पैक्ट करदा इस चीज़ नूं, तां तुसीं जरूर मतलब फाइंड आउट करना जिन्नियां भी तुहाडे कोल कोई रैफरेंस बुक्स ने। NCERT सब तो बेस्ट है वैसे। तो जिहड़ी बुक आ तुसीं देखो उहदे विच तुहानूं कोई कंडीशन दिंदा गा भी ब्लू लाइट दे विच असीं इंसीडेंट कीती बट साडे कोल डिफरेंट करंट प्रोड्यूस होया, तो की रीज़न हो सकता है। तो आप उत्ते कहांगे भी सेम फ्रीकुएंसी होने के बावजूद भी उत्थे इंटेंसिटी डिफरेंट होनी है। जे इंटेंसिटी डिफरेंट आ तो जाके करंट भी डिफरेंट प्रोड्यूस होएगा, ठीक है, राइट। जिहड़ा हुण दा नैक्सट अपने कोल क्वेश्चन आ, तुसीं देख रहे हो डायग्राम, ठीक है। तो फ्रीकुएंसी ते पोटेंशियल ये तुहाडे NCERT का क्वेश्चन आ। तो फ्रीकुएंसी ते पोटेंशियल दे बिटवीन ये दो सानू ग्राफ दिते ने। ये जिहड़ा आपां इस लैक्चर दे विच स्टार्टिंग च एक ग्राफ डिस्कस कीता सी, उहदे तो ये क्वेश्चन बनते हैं। हुण तुसीं उस नूं जे देखिया होगा, लर्न किया होगा, तो तुसीं देखो उत्थे भी आपां कहा सी भी इस एक्सिस दे उपर आके फ्रीकुएंसी ते जे इत्थे आपां लाइन टच करदे हां, तो क्यों? क्योंकि ये जे आपां इहनूं वापस लैके चलीए, लैट्स इहनूं थोड़ा रीट्रेस करिए, तो आ वैल्यूज़ इंटरसैप्ट वैल्यूज़ बनदियां ने, है ना, इधर नूं। सो दैट मीनस ये वैल्यूज़ जिहड़ियां ने बिलोंग कर रही ने भी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होणगे। So that means these two values will be the threshold frequencies, है ना। हुण वो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल हो गया। देखो इत्थे क्वेश्चन मैं तुहानूं पुछां भी which metal has higher
वर्क फंक्शन। तो तुसीं देखो वर्क फंक्शन किते डिपेंड करदा गा, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। सो द वैल्यू ऑफ द थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसीज आई हैव टू वैल्यूज़ हियर। तो तुसीं देखो ध्यान नाल, हुण मैनूं थोड़ा जिहा इहनूं इरेज कर दां ताकि थोड़ा माइंड डाइवर्ट ना हो जाए इधरली साइड ते। ये माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ये तो पहले ही वैसे ही औखा है ना, फोन च लगे हुए हो। एक होर गल तुहानूं दसां, व्हाट्सएप वगैरह बंद कर दिया करो, क्योंकि मैं देखता हूँ भी कई बारी नाल यूट्यूब चल रही है, उपरों नोटिफिकेशन भी आई जाती होंगे ने। सो दैट इज़ ना काइंड ऑफ हैक्टिक, है ना। सो एनीवेज मैं वापस आवां तां मैं हौली बोले थोड़ा जिहा। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਨॉट ਤੇ ਨਿਊ ਨॉट ਡੈਸ਼ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਾਈਟ ਵਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ भी as new naught dash is greater than new naught, therefore work function of B metal is greater than the work function of A। ठीक है, हुण एक तो गल इत्थों तुहानूं क्लीयर हो गई। हुण इहदे बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी गल मैं तुहानूं पुछां भी, मैं एक इन्हां ते फोटोन फॉल कीता दोनों मैटल्स दे उपर न्यू फ्रीकुएंसी दा, ठीक है, फ्रीकुएंसी का फोटोन मैं इंसीडेंट किया, फोटोन्स फ्रीकुएंसी। तो जे आपां इहनूं इंसीडेंट फोटोन दे फोटोन नूं आपां जिहदी फ्रीकुएंसी न्यू आ दोनों मैटल दे उपर फॉल किया, तो पॉसिबिलिटी आ भी जो क्वेश्चन की कंडीशन आ भी दोनों दे विचों फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन होया, ठीक है। मतलब न्यू की वैल्यू ओबवियसली न्यू नॉट तो न्यू नॉट डैश नालों ज़्यादा होगी। तो जिहड़ा हुण मैटल ए एंड बी आ, विच मैटल विल हैव, विच मैटल्स इलैक्ट्रॉन विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। तो देखो कंसैप्चुअल है भी, तो किहदे कोल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। हुण तुसीं आइनस्टाइन की इक्वेशन ते चलो, आइनस्टाइन की इक्वेशन की कहंदी सी सानूं भी फ्रीकुएंसी दे थ्रू एनर्जी जिहड़ी आ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। हुण तुसीं इत्थों आइडिया लाओ कि भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जिहड़ी आ वो किहदे कोल होगी, दैट वुड बी एच न्यू माइनस फाई, है ना। हुण तुसीं ये देखो भी न्यू की वैल्यू सॉरी फाई की जी वैल्यू आ वो डिसाइड करूगी, बिकॉज एच न्यू तो दोनों लिए सेम आ, बिकॉज वी हैव सेम फ्रीकुएंसी फॉर बोथ द मैटल्स, है ना। तो कौन डिसाइड करूगा, जिहड़ा फाई आ वर्क फंक्शन। हुण जे तुसीं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नूं ज़्यादा लेना तो फाई की वैल्यू घट होनी चाहिए आ, एम आई राइट। ये तो अलजबरा गा। तो यदा मतलब की हो गया भी काइनेटिक एनर्जी जिहड़ी आ ਉਹ डायरैक्टली इत्थे डिपेंड कर रही आ वर्क फंक्शन की वैल्यू के नाल, एम आई राइट। नो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन पर डिपेंड करती नहीं। वैसे मैं तुहानूं एक दस्सिया सी, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती हुंदी आ, कंसैप्चुअल बनता हुंदा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इत्थे किहदे ते डिपेंड करूगी, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू of phi in both metals, ठीक है। तो बड़ा सिंपल जा हो गया भी जिहदी फाई की वैल्यू घट आ, मतलब जिहदा वर्क फंक्शन घट आ, उहदे इलैक्ट्रॉन ने ज़्यादा ईजीली तो ज़्यादा जल्दी जंप करना, फास्ट जंप करना, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एक्सलरेट करके बाहर निकलूगा। उन्होंने जिवें मैं कल दी जिहड़ी तुहानूं लास्ट वीडियो सीगी उहदे च आपां डिस्कस कीती सी भी 600 रुपीज़ तुहानूं दित्ते, है ना। 400 रुपीज़ की तुसीं टिकट बाय कर ली, कोई सियाणा भी होगा चों जिहड़ा कहूगा भी जरूरी है 400 की टिकट बाय करनी है। मैं तो 200 की टिकट बाय करूँगा, 400 रुपया मैं अपना स्पेंड करूँगा, राइट। तो इस तरह भी हो सकता है। तो जिहदे कोल 200 रुपया टिकट बाय कीती है जिन्हें,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि 400 रुपया खर्चण वास्ते वध भजना पऊगा। सेम सिचुएशन इत्थे होगी जिहदे कोल ज़्यादा फाई की वैल्यू घट होगी ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। सो इस दा जिहड़ा आंसर आ वो की आ भी मैटल ए, ठीक है ना, मैटल ए दे कोल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलैक्ट्रॉन इमिट करूगा एज़ कंपेयर टू मैटल बी बिकॉज इट हैज़ मोर इट हैज़ लैस वर्क फंक्शन अमाउंट। ठीक है, आए होंगे ने कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स। तो ख्याल रखो, इनू पढ़ियो, इनू समझो चंगी तरह, पॉज कर लिया करो ताकि अंडरस्टैंड कर सको, थोड़ा बहुत नोट डाउन भी कर लिया करो, कदे कदे चंगा रहिंदा गा। एक क्वेश्चन अपने कोल बई, ठीक है, इस क्वेश्चन दे विच आपां डिस्कस करना गा। पहला तो देखो पढ़ लो इनू चंगी तरह ध्यान नाल। क्वेश्चन आ भी सानू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज़ अबाउट 300 नैनोमीटर फॉर वॉयलेट कलर, 550 नैनोमीटर फॉर येलो ग्रीन कलर एंड 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर। 3 क्वेश्चन ने आपां इच करने, ठीक है। पहला हैगा फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। दैन जे किसी भी मैटल के उपर जिहदा वर्क फंक्शन 2.8 इलैक्ट्रॉन वोल्ट है दैट फॉल्स ऑन दैट, है ना, तो किहड़ा उहदे चों इलैक्ट्रॉन इमिट करूगा 3 कलर्स दे विचों, ते उसे इलैक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपां ने फाइंड आउट करनी आ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल जा क्वेश्चन है ये। हुण इहनूं करन दे लई पहला तो ये देखो भी एनर्जी का फार्मूला एक तो सीगा एच न्यू, फोटोन की एनर्जी। न्यू की वैल्यू नूं मैं पुट कर सकदा सी अपॉन लैमडा, तो ये हो गया इसका फार्मूला एच सी अपॉन लैमडा। हुण तुसीं इस फार्मूले नूं जे आपां देखिए वर्क फंक्शन की वैल्यू इलैक्ट्रॉन वोल्ट च, राइट, तो इत्थे सारे यूज़ करते हैं शॉर्टकट एक जिहड़ा आपां यूज़ करना गा वो हैगा एच इंटू सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके उन्होंने इलैक्ट्रॉन वोल्ट च कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो वो एनर्जी बन जाती आ 1240 बाय लैमडा जे वेवलेंथ अपने कोल नैनोमीटर च। जे अपने कोल वो वेवलेंथ ऑंगस्ट्रॉम चा तो तुसीं उस वैल्यू नूं 12,400 लिख देना, तो यूनिट हो जूगी ये जी इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं गा, तो इस करके 1240 नैनोमीटर इत्थे क्योंकि नैनोमीटर आ, सो मैं यूज़ करूँगा 1240। तो 1240 जिहड़ा आपां यूज़ करांगे, तुसीं ये तीनों वैल्यूज़ नूं पुट करके देखना। ठीक है, जे आपां देखिए एक पुट करके E1, सो 1240 डिवाइडेड बाय पहली वैल्यू आ जूगी किन्ने अपने कोल, दैट इज़ 390, राइट। तो तुहानूं इत्थे कन्वर्ट करने की कोई लोड़ नहीं, सब कुछ ऑलरेडी डन है। तुसीं की करना, सिर्फ इनू कैंसल करना। ठीक है, तो सिंपल जी डिवीजन करनी आ, सेम इलैक्ट्रॉन वोल्ट आ जाऊगा। दैन तुसीं ट्राई करना गा दूसरा E2 इस तरह। ठीक है, फिर तुसीं ट्राई करना गा E3। ओके, इनू करके देखो, तो पहला ट्राई करो, मैं एक मिनट लिए वेट करदा थोड़ी ताकि कंप्लीट होवे ये कैलकुलेशन थोड़ी, है ना। फिर उस तो बाद चो आपां सैकेंड क्वेश्चन ते आवांगे तीनों वैल्यूज़ नूं लैके। मैजिक देखो वैल्यूज़ नूं, पहली वैल्यू आ गई 3.18, दूसरी वैल्यू आ गई 2.25, तीसरी वैल्यू आ गई 1.63, है ना। हुण ये जिहड़ियां तीनों वैल्यूज़ आईयां ने ऑलरेडी इलैक्ट्रॉन वोल्ट च ने। सैकेंड क्वेश्चन ते देखो हुण तुसीं ध्यान नाल पढ़ के, सैकेंड क्वेश्चन की कहंदा भी फॉल्स ऑन ए मैटल विद वर्क फंक्शन 2.8 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो कंडीशन बड़ी सिंपल आ, हुण जिहदा वर्क फंक्शन 2.8 इलैक्ट्रॉन वोल्ट आ, राइट, वो E2 नूं अलाउ नहीं करूगा, E3 नूं भी अलाउ नहीं करूगा। सो कौन जाऊगा विन करके, दैट विल बी E1। तो 3.18 हुण 3.18 इलैक्ट्रॉन वोल्ट किहदी एनर्जी सीगी, वो सीगी अपने कोल जी वायलट कलर दी, राइट। तो इसका मतलब कौन हो गया, वायलट कलर जिहड़ा गा ओहो अमिट करूगा इलैक्ट्रॉन। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन का देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। हुण तीसरा क्वेश्चन, हुण देखो हो डिसीजन ईजी हो गया। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो इन्होंने तो करनी नहीं अमिट, तो उधर तो बजाना नहीं का। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला की सी अपने कोल, दैट विल बी
ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ 3.18 ਮਾਈਨਸ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 2.8। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਏ 'ਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।